Welcome back, students. So in this section, we'll be talking about the acquisition as well as the exemption from capital gains on agricultural land. Okay, and we have already discussed that the agricultural land in rural area in India is basically not considered as a capital asset. So if it is not a capital asset, it means we cannot calculate any capital gains. That we have already learned in our previous sessions, that agricultural land in rural area is not a capital asset. Okay, but in case assessee hold the agricultural land as stock in trade, means he is into buying and selling of land regularly or in the course of his business, then in that case any gain from that particular sale are taxable under the head of your PGBP. Okay, so whenever the agricultural land is held as stock in trade, it means whatever the amount of profit you get after selling that particular agricultural land, then it will be taxable under the head of PGBP. ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट जो बचता है वो क्या बचता है? एग्रीकल्चरल लैंड इन अर्बन एरियाज. बट लेट मी टेल यू, एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 37, capital gains on compensation received on compulsory acquisition of urban agricultural land is exempted from tax. So it means, in short, in case any agricultural land is acquired by any authority for the time being, and whatever the compensation the assessee is getting, that compensation is entirely exempted from your tax. It is immaterial whether the agricultural land is located in rural area or in urban area. Okay, so आपको हमेशा जो compensation है in case of compulsory acquisition वो exempted है. ठीक है, next concept आता है आपका capital gains exemption in case of transfer of agricultural land. So this is very important from your examination point of view, कि अगर आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है एंड दैट टू इन अर्बन एरिया, क्योंकि रूरल एरिया का तो हमने कंसेप्ट ही हटा दिया. सो अगर अर्बन एरिया से आप कोई एग्रीकल्चरल लैंड को बेचते हो तो आपको सर्टेन काइंड ऑफ एग्जेम्पशंस मिलती हैं फ्रॉम द कैपिटल गेन्स. और वो किस टाइप की एग्जेम्पशंस होती हैं, उसके लिए देयर आर वेरियस काइंड ऑफ कंडीशंस. सो लेट्स जस्ट डिस्कस ईच वन ऑफ देम इन डिटेल. सो फर्स्ट इज रिगार्डिंग टू द एप्लीकेबिलिटी. सो दिस इज अवेलेबल टू बोथ individual as well as to HUF. So इन दोनों के लिए available है. The land which is being sold must have been used for agricultural purposes by the individual or his parents or by the HUF for a minimum period of 2 years. Okay, so अगर आपकी agricultural land 2 साल से कम के लिए यूज आपने करी है और आपने उसको बेच दिया, in that case you cannot claim the exemption under section 54B. सो फर्स्ट कंडीशन है कि जो भी आप एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हो, दैट शुड बी हेल्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस फॉर एटलीस्ट 2 years. ओके, सो 2 साल एग्रीकल्चरल पर्पस यूज करो, फिर उसके बाद आप बेचोगे तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी. ठीक है, एग्जेम्पशन कैसे मिल रही है? इफ यू आर परचेजिंग अनदर लैंड एंड दैट टू ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस, आपको उसका बेनिफिट जो कैपिटल गेन है वो तब मिलेगा व्हेन यू आर परचेजिंग अनदर एग्रीकल्चरल लैंड एंड इट कुड बी आइदर इन रूरल एरिया और अर्बन एरिया, डजंट मैटर. ओके, और आप उसको कब परचेज कर रहे हो? विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ योर लैंड. ओके, सो इसका क्या मतलब है? सबसे पहले ये है कि आप एक इंडिविजुअल या HUF हो, आपके पास कोई एग्रीकल्चरल पर्पज है, आप उस पर खेती करते हो या करवाते हो और वो 2 साल से ज्यादा आपने यूज करी है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए. अब आपने वो जब बेची है, तो जब आपने ट्रांसफर किया है, उस ट्रांसफर के 2 साल के अंदर अंदर उस डेट से आपने एक और एग्रीकल्चरल लैंड ले ली है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए, भले ही वो अर्बन में एरिया में हो चाहे रूरल एरिया में हो. आपने अगर वो खरीद ली है तो आपको एंटायरली कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपको उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा. सिमिलरली आपको जो भी आपने न्यू एग्रीकल्चरल लैंड आपने जो परचेज करी है, इट शुड नॉट बी सोल्ड ऑफ विद इन 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स परचेज.
So this is one more additional condition that 2 साल के अंदर आप जो भी नई परचेज करोगे उसको आपको 3 साल कम से कम अपने पास रखना है. अगर आप नहीं रखोगे तो whatever the capital gain exemption which is given to you, it will be taken back. So if the new asset is transferred within 3 years of its acquisition, then the exemption will be taken back. And for calculating the capital gains on the transfer of new asset जो आपने नया खरीदा है different उसको पुराने वाले को बेच के, उस केस में आपकी cost of acquisition will be the original cost of acquisition minus the exemption that you have availed earlier. ओके, सो आपकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगी वो आपकी रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी कुछ एग्जेम्पशन क्लेम करी थी विच इज ऑन द बेसिस ऑफ दैट यू विल कीप दैट एसेट फॉर 3 years बट यू डिड नॉट keep your promise. So in that case, whatever exemption that the government has already given to you, that exemption will be taken back. So वो taken back तभी होगी जब आपकी ओरिजिनल कॉस्ट जो नया सेट की होगी उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अगर कॉस्ट कम तो इसका मतलब आपका टैक्स ज्यादा बन गया. Now, so in case it is very important point that in the case where assessee is not able to purchase the agricultural land before the date of furnishing of his income tax return हम हर साल हर assessee इनकम टैक्स अथॉरिटीज को फाइल करता है जिसमें वो अपने सारे पर्टिकुलर्स लिखता है that whatever all the income that he has earned, whatever all the taxes that he has already paid to the government, and whatever the balance may be. The balance could be in the form of additional tax that he has to pay, or it could be in the form of a refund which he is entitled to get from the income tax authority. So there is a proper format, वो we'll discuss later. So अभी तक बस ये देख लो कि अगर ITR भरने से पहले उसने कोई एग्रीकल्चरल लैंड नहीं खरीदी है, सो उस केस में वो क्या कर सकता है, ही कैन डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन्स, जो भी उसके पास कैपिटल गेन आया वो डिपॉजिट कर देगा बिफोर द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन द डिपॉजिट अकाउंट. सो देयर इज एन अकाउंट, डिपॉजिट अकाउंट, which can be made in any branch except rural branch of the public sector bank or IDBI bank according to the capital gains account scheme 1988. So इसके अंदर आपका एक डिपॉजिट अकाउंट होता है, तो इन केस आप नहीं खरीद पाए तो आप उस अमाउंट को उसमें डिपॉजिट करा दीजिए, फिर आप ITR में डाल दीजिए that you have deposited the amount, so आपको exemption मिल जाएगी. ठीक है, अगर आप नहीं खरीद पाते. ठीक है, सो इन केस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपने वो डिपॉजिट करा दिया, आपने एग्जेम्पशन ले लिया, आपने एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदी, आपने बस डिपॉजिट करा दिया कि यू विल परचेज द लैंड इन फ्यूचर, बट इन दैट केस इफ यू आर नॉट एबल टू परचेज द एग्रीकल्चरल लैंड, देन इट शैल बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल गेन ऑफ द ईयर इन विच द पीरियड ऑफ 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द सेल ऑफ लैंड एक्सपायर्स. सो आपकी कंडीशन होती है कि आपको 2 साल के अंदर अंदर नई प्रॉपर्टी खरीदनी होती है, नई एग्रीकल्चर लैंड खरीदनी होती है, और अगर आप नहीं खरीद पाते तो आप डिपॉजिट अकाउंट में ये कह के आप सबमिट कराते हो कि आप खरीदोगे. फिर भी अगर आप नहीं खरीद पाते हो तो जैसे ही 2 साल की एक्सपायरी होगी आपका कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा टैक्स से, वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा. एंड विड्रॉल फ्रॉम दिस अकाउंट इज परमिसेबल. So आप withdraw करा सकते हो, it is permissible, but it should be only for the purpose of the acquisition of agricultural land. अगर वो किसी और purpose के लिए withdraw करा रहा है, then it is not permissible and he is not able to get the exemption under this section. So these are the conditions. And what will be the amount of exemption? Amount of exemption will be the cost of new agricultural land purchased or the amount of capital gain whichever is lower. ठीक है, सो या तो नई जो आप एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो वो अगर कम होगी तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी, नहीं तो अगर कैपिटल गेन्स कम है तो वो हो जाएगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल. सो सपोज मिस्टर एक्स sells agricultural land situated in Delhi. Okay, so it is in urban area, we know that. Okay, so for rupees 60 lakhs on July 4, 2019, which was purchased by him on March 1, 2007 for 15 lakh 18,000. So we know that March 1st March 2007 से
July 4, 2019 is definitely greater than 24 months. So we can assume that he has used the agricultural land for at least 2 years. Okay. So एक condition तो हमारी fulfill हो गई. Then on July 15, 2020, he purchased agricultural land in rural area for rupees 4,30,000. So अगर हम देखें उसने कब सेल ऑफ किए 19 में, जुलाई 19 में, और 15 जुलाई 2020 यानी एक साल के अंदर इसने एक और एग्रीकल्चरल लैंड ले ली है. रूरल एरिया में ले चाहे अर्बन एरिया में, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस. ले ली है तो मतलब एक साल के अंदर ले ली है. वैसे 2 साल की कंडीशन है, सो इसका मतलब इसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. And he deposits 10,80,000 in a deposit account for availing exemption under section 54B. So ये deposit account का भी मिल जाएगा क्योंकि इसने इसमें deposit करा दिया on the basis of that satisfaction that he will purchase the agricultural land in the near future. Okay. Now next is he purchased another land in Gurugram on June 30, 2021 for rupees 8,70,000 by withdrawing from the deposit account. So उसने फाइनेंशियल ईयर दैट इज 21-22 में जाकर एक लैंड खरीदी इसी डिपॉजिट अकाउंट में से निकाल के, और वट एवर द अमाउंट लेफ्ट इन द डिपॉजिट अकाउंट दैट वाज विड्रॉन ऑन 10 जुलाई 2021. मतलब वो जो विड्रॉ कराया है वो अपने पर्सनल पर्पस के लिए कराया, किसी एग्रीकल्चर पर्पस के लिए नहीं कराया. द एग्रीकल्चरल लैंड इन रूरल एरिया क्या थी हमारी 4,30,000 वाली, was transferred for rupees 4,90,000. कब खरीदी थी? जुलाई 15, 2020 में, बेच दी 2022 में, और वो भी 2 साल के अंदर अंदर. वैसे कंडीशन क्या है आपकी 3 साल, और इसने 2 साल के अंदर कर दी. इसका मतलब जो भी इसको एग्जेम्पशन मिली थी वो एग्जेम्पशन अब इससे वापस ली जाएगी. और फिर जो उसने गुरुग्राम की लैंड थी वो उसने ट्रांसफर कर दी 2022 में. गुरुग्राम में कब खरीदी उसने? 21 में. ये भी इसने एक साल के कुछ महीने बाद, एक साल एक महीने के बाद ही ट्रांसफर कर दी, तो ये भी उसने 3 साल नहीं खरीदी. सो ये 8,70,000 भी अब उससे वापस लिया जाएगा. सो इट्स वेरी इजी. लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स इन दिस क्वेश्चन इन डिटेल नाउ. सो असेसमेंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 1920. सो सबसे पहली लैंड जो थी 2 साल यूज करके 60 लाख की बेच दी, राइट. सेलिंग एक्सपेंसेस निल थे, एग्जैक्ट 60 लाख हो गई. और उसने खरीदी कब थी? वो उसने खरीदी थी 15,80,000 में 2007 में 1 मार्च को. तो 6-7 का उसका CII लगेगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर से. तो ये आपकी इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गई. ये जैसे ही आपने सब्ट्रैक्ट किया बैलेंस आ गया. नाउ यू आर क्लेमिंग द एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54B. सो इस साल की अगर हम बात करें 1920 की, सो उस साल उसने एक लैंड खरीदी थी 4,30,000 की 15 जुलाई 2020. ITR यूजुअली आपका 31 जुलाई को फिल किया जाता है, तो उसने 31 जुलाई से ही पहले खरीद ली. ITR भरने से पहले ही 4,30,000 की और 10,80,000 उसने डिपॉजिट करा दिए. तो मतलब ये दोनों का दोनों अमाउंट आप ऐड करके एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, क्योंकि आपने ITR अभी फिल नहीं करी है. उसकी यूजुअली डेट होती है, सो वो 31 जुलाई होती है. तो इसलिए ये एड अप होके आपका एग्जेम्पशन मिल गया. और आपको कितनी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है कितना बना? 8,94,082. नाउ द नेक्स्ट असेसमेंट ईयर, दैट इज योर द ईयर इन विच द एग्रीकल्चरल लैंड परचेज्ड इन रूरल एरिया वाज ट्रांसफर्ड. सो कब ट्रांसफर हुई आपकी? उसने वो ट्रांसफर कर दी आपकी अप्रैल 2022 में 4,90,000. ठीक है. सो 4,90,000 की उसने जब करी. इससे पहले हम लोग अमाउंट डिपॉजिट का भी कर लेते हैं. आपका जो असेसमेंट ईयर 22-23, राइट, हमारा जो असेसमेंट ईयर था दैट इज 2021. इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 2 साल के अंदर अंदर उसने क्या किया, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या कहती है कि 2 साल के अंदर उसको परचेज कर लेना चाहिए. आई एम रियली सॉरी. कंडीशन क्या है कि 2 साल के अंदर अंदर परचेज करना है. तो 2 साल कब खत्म हो रहा है हमारा? असेसमेंट ईयर 22-23 में. ठीक है. तो हमारा अमाउंट तो डिपॉजिटेड था 10,80,000. कितना यूज हुआ? बस 8,47,000 तक, जो हमने एक नई लैंड खरीदी थी रूरल एरिया में, राइट. सो हमारा बैलेंस अब पूरा टैक्सेबल हो गया.
उसके बाद कंडीशन आती है कि जो भी आपने लैंड खरीदी है वो एटलीस्ट आपने 3 साल अपने पास रखी, जो वो भी आपने नहीं रखी, इस वजह से एंटायरली 4,90,000 or 8,70,000 should be chargeable to tax, but since it is in rural area, it is not taxable. So this is the treatment